So welcome back to Tech Orbit channel. So now, as I told you in previous lecture, I will start in this session outliers, how we can found the outliers, how we can calculate, and how when we can remove the outliers, when we can keep the outliers, and if we remove the outliers, so how we can fill that outliers, that all the things. And if we have millions of data, so how we can identify there are outliers or not. So यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं जिससे हम फाउंड कर पाते हैं कि आउटलायर्स है या नहीं. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आउटलायर्स होते क्या हैं. So what is the outliers? So if I tell you in a definition format, so outliers is an observation or a data point significantly different from other observation or a data points in a data set. Okay, so various factors can lead to occurrence of outliers such as the natural variance, variation in data, measurements errors, or a data entry error. Okay, so this type of maybe happens in during extracting or preparing data. So maybe that error that outliers came in the data set. So if I tell you the outlines how it will be look like. So suppose there is a name and there is an income. Okay, so there is a x y like that, and z a b like that data set, and the income is a 1,100, 1,500, 980. But in between somewhere there is a one person whose name is a gate, which is a different from others, and the income is become this. So that is called the outliers, means which it is a totally extreme value from others. So that is called the outliers. Now if we say, if we are treating outliers as a missing value, as a handling data cleaning part, so can we treat outliers as a missing value? So no, there is a slight difference between missing values and outliers. So both the issue came in within the data cleaning part. In data cleaning part we are handling both the things, missing value and outliers, but slightly different. What is that? Missing data refers to the absence of the value in data set. Okay, means there is a no data, which can occur a variety of reasons such as the data entry errors or an incomplete surveys. Missing data can cause problems such as the reduced sample size, based result, and the inaccurate analysis. To handle missing data, different techniques such as the imputation and exclusion can be used to fill the missing value. So in previous lecture I told you na imputation. So we are using imputation and exclusion, that variance and standard. So we are using this type of method to filling that missing value, to handle that missing value. On the other hand, the outliers are the extreme value that deviating significantly from the rest of the data in dataset. Outliers can be caused by the measurement error, natural variation, and the rare event, and can skew the result of the analysis by affecting the mean, standard deviation, and other statistical measures. Okay, so what happening in the outliers? Outliers is extreme value. There is a, in missing value there is a no data. Okay, but in outliers there is a data, but which is the extreme value to compare to other data. Okay, so it maybe the cause maybe became the error of the measurement and like that. So to handle the outliers, there is a technique which is called the quartile function. Okay, in missing value we are using imputation and exclusion method. Imputation method, in under imputation method, mean, median, mode, and moving average, and the exclusion method is coming under the standard deviation and the variance. But for handling the outliers, we are using the quartile function. Okay, so quartile function can be used to identify and remove them from the data set or account for them in an analysis. Okay, so इसका यूज करके हम पता कर सकते हैं कि डाटा सेट में आउटलायर्स है या नहीं है. ठीक है, तो हमें आउटलायर्स हैंडल क्यों करना चाहिए बिफोर एनालिसिस के. जैसे बहुत सारे रीजन थे मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के, वैसे आउटलायर्स के भी हैं. So it will outliers can significantly skew summary statistics such as the mean and standard deviation. Suppose extreme value है, ठीक है ना, तो ये हमारे मीन और मीडियन को भी इफेक्ट कर सकता है. जब हम कोई स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसको इफेक्ट कर सकता है. सब निकाल रहे हैं वो उसको इफेक्ट कर सकता है. ठीक है ना, एंड ये मिस्टेकली होता है. ठीक है, कुछ बहुत आउटलायर्स होते हैं जो उस डाटा सेट में होना ही चाहिए, मे बी वो उसी टाइप की वैल्यू हो, तो उसको हम नहीं रिमूव कर सकते हैं. वो हम बिजनेस के अकॉर्डिंग करते हैं. ऐसा कुछ जब भी आता है तो वी विल आस्क विद अवर बिजनेस, अवर सीनियर. Okay, then he will say anything, or we can check the documents. If anything present like this, you can keep your outlier. If you have not clarification, we have to remove or not remove. So you have to do two types of analysis: one analysis with outliers and one analysis without outliers. Okay, so now if we remove the outliers, so if we remove the outliers, so maybe in one column there is a, in one column, in a one row, one outliers, but with that outliers in a same row there is a lots of value in a different column. So if we remove that outliers, so it will affect that value. Okay, so if business saying no, this type of value is not exist, I think mistakenly it's entered, you can remove that outliers and fill with that using missing function, whatever that I teach you, that all the things. Okay, so now अगर हमने आपको बताया कि हम क्वार्टाइल फंक्शन का यूज करते हैं आउटलायर्स को पता करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, तो हम
क्या होता है ये क्वार्टाइल फंक्शन? व्हाट इज द क्वार्टाइल फंक्शन? क्वार्टाइल फंक्शन, ओके. So the quartile function calculates the quartiles of data set, which divides the data into four equal groups. It splits the data range into four sections of equal size. This function can determine the minimum, maximum, first, second and third quartile. Okay. So Excel में quartile function होता है. जब तुम ऐसे करके लिखोगे ना quartile, तो वो एक ऐसे बॉक्स ओपन होगा और वो तुमको ट्रिगर, वो एक इन्फो देगा कि तुम एरे सेलेक्ट करो एंड देन उसके बाद क्वार्ट नंबर डालो, कौन सा क्वार्ट नंबर. सो ये क्वार्ट अरे तो तुमको समझ आ गया कि हाँ रेंज की बात कर रही है, ओके. बट व्हाट इज दैट क्वार्ट नंबर? व्हाट इज दैट क्वार्ट नंबर? सो क्वार्ट नंबर इज बेसिकली क्या होता है, ये तो सेल की रेंज होती है. क्वार्ट नंबर बेसिकली क्या होता है, ये एक नंबर, इसमें नंबर्स होते हैं क्वार्टाइल फंक्शंस में जो इंडिकेट करता है कि तुमको क्या फाइंड करना है. जैसे अभी बताया कि क्वार्टाइल फंक्शन से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टाइल. 5 टाइप की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं इस फंक्शन से. तो क्वार्ट वही वो एक इंडिकेट करता है यहाँ पर कि हमको वो कौन सी वैल्यू फिल करनी है, हमको मिनिमम फाइंड करना है या मैक्सिमम फाइंड करना है, फर्स्ट सेकंड, हमको क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नंबर प्लेस करते हैं. वो नंबर कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बताते हैं, ठीक है ना. तो हम नंबर बताते हैं आपको कौन कौन से होते हैं. सो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर्स होते हैं. ये क्वार्ट नंबर है. ये क्या है, ये क्वार्ट नंबर है, ठीक है ना. तो अगर हम 0 लिखेंगे यहाँ पर तो वो क्या क्वार्टाइल रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट रेंज. अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 क्या रिटर्न करता है, 1 क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा फर्स्ट क्वार्टाइल. फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब 25th परसेंटाइल, 25th परसेंटाइल. आई थिंक सब लोगों को पता होगा ये परसेंटाइल क्या होता है, ओके. तो जितना डेटा होगा उसका 25th परसेंटाइल वो रिटर्न करेगा उस डेटा का, ओके. अगर हम 2 लिखते हैं तो वो मीडियन वैल्यू रिटर्न करता है. मीडियन वैल्यू मतलब मिडिल वैल्यू, ओके. मिडिल वैल्यू मींस 15th परसेंटाइल ऑफ दैट डेटा सेट, ओके. 15 परसेंटाइल ऑफ दैट डेटा सेट, ओके. थर्ड क्या करता है, थर्ड क्या करता है, थर्ड हमको रिटर्न करता है थर्ड क्वार्टाइल. 1 क्या करता है, 25th परसेंटाइल हमको रिटर्न कर रहा है ऑफ दैट डेटा सेट. मिड 2 क्या कर रहा है, हमारा 15th परसेंटाइल ऑफ द डेटा सेट रिटर्न कर रहा है. थर्ड क्या कर रहा है, 75th परसेंटाइल ऑफ दैट रेंज हमको रिटर्न कर रहा है, ऑफ द डेटा सेट हमको रिटर्न कर रहा है, ओके. फोर्थ क्या करता है, फोर्थ क्या रिटर्न करता है, फोर्थ हमारा रिटर्न करेगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ओके. समझ आया. परसेंटाइल सबको पता है. अगर 25th परसेंटाइल है मतलब द लोवेस्ट 25% ऑफ द नंबर्स, ओके. देन नेक्स्ट, देन सेकंड जो कि मीडियन वैल्यू है, ठीक है ना. तो मतलब नेक्स्ट लोवेस्ट परसेंट ऑफ द नंबर अप टू द मीडियन, ठीक है ना. जो मीडियन अप टू द मीडियन, ठीक है. मीडियन तक 25 परसेंटाइल जब वो हमारा निकल गया उसके बाद से लेके हमारे मीडियन तक के जितने भी 25% लोवेस्ट नंबर होंगे वो हमें रिटर्न करेगा, लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट नंबर. देन थर्ड क्या करता है, 15th परसेंटाइल के बाद the 25th percentile of the highest, second highest 25th percentile above the median, median के बाद जो 25th percentile of highest number होंगे वो हमको रिटर्न करेगा. और फोर्थ क्या करता है, the highest 25 of the number, ओके. हाईएस्ट हमको ये रिटर्न करता है. 0 क्या करता है, मिनिमम वैल्यू, जो एक मिनिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करता है, ठीक है, मिन वैल्यू. अब हमें लगता है आप लोग को समझ आ गया होगा कि क्वार्ट नंबर क्या होती है और कौन सा क्वार्ट नंबर लिखने पे क्या रेंज हमको मिलता है, क्या हमको कैलकुलेट करके दिया जाता है, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, एक हम डेटा सेट लेते हैं उसमें हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं, ठीक है. तो हमारे पास एक डेटा सेट है ये. तो यहाँ पर हमने पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, पहले से हमने करके रखा हुआ है. तो इसको हम देखते हैं. तो जब हमारी क्वार्ट वैल्यू है यहाँ पर, जब हमारी क्वार्ट वैल्यू है 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला यूज किया है दिस. तो हम एक बार फिर से यूज करके दिखाते हैं. जब हमारी क्वार्ट वैल्यू 0 हम ले रहे हैं, ऐसे इक्वल लिखा, हमने लिखा क्वार्टाइल फंक्शन. तो क्वार्टाइल फंक्शन जैसे ही लिखा हमने तो यहाँ पर आया ये. तो इसको हम लिखेंगे, हमने अरे सिलेक्ट किया विच इज द रेंज ऑफ दैट डेटा सेट, कॉमा क्वार्ट नंबर इज 0. तो हमने 0 लिखा quartile, so it will return it will take as a 0 1 2 3 4. if you are using quartile.exe that one formula and inc that one formula, so enc it will take from value from 1 to I think something, and inc it will take from 0. That's why you use only quartile function. Quartile function it will take from 0 to 4 everything, okay. So when I use the quart number 0, so it's written the minimum value, so you can check the minimum value is 11,000, so return that. So you can read here the quart 0 value will return the minimum value from the cell revenue data, okay. Now I will use 1 as a quart, okay. So when I return the quartile function, okay, quartile function, select the array range, comma quart number which is a 1, and when we enter, so it's return the 25th percentile value from the data set which is the 23500,
Okay, 2 3 5, it's calculated. It's first, it's separated the 25% of that your data set, which is the lowest value, lowest 25%. Okay, and it's calculated their percent. Okay, so you can say for value 1, the function will return the first quartile of 25th percentile value from the data set. Okay, now the second quartile, the next quartile is a 2. When I use the 2, when I use the 2 as a quart number, so it will return the median value. It will return the median value. Median means what? For value 2, the function will return the second quartile or a 15th percentile value from the data set. Okay, means next 25 lowest percent 25 lowest percent from till median. Okay, the next is we are calculating what we are going to use 3 quart number. Okay, so 3 quart number, you know what it will return. So I will select the array, comma, then quart number, which is the 3, 3, then we will enter. So it's written this. So what it will return? The function will return the second quartile, which is the second highest quartile or 75th percentile value from the data set. Okay, then fourth quart number I will use. So I will select, and fourth quart number 4 I will write. So it will return the maximum value. Okay, which is the 8900. So maximum value is this. Okay, 0 1 return the minimum value. 4 quart number is return the maximum value. 1 2 3 will return the percentile value. First will return the 25th percentile. Second will return 15th percentile. Third will return the 75th percentile. So that's you can calculate your quartile. Okay, that you can calculate the quart value. Okay, अब चलो एक चीज देखते हैं कि सपोज, चलो हम नोटपैड में आते हैं. नोटपैड में हम यहाँ पर हम एक चीज बताना चाहते हैं. अब हम कुछ एरर्स की बात कर लेते हैं. तो अगर हमारा रेंज है, ठीक है ना, अगर वो अरे जो है, अगर उसमें कोई वैल्यू एम्प्टी है, ठीक है ना, एम्प्टी है, इफ अरे इज एम्प्टी, ठीक है ना, तो क्वार्टाइल क्या करेगा, ये एरर रिटर्न करेगा. ठीक है ना, क्वार्टाइल फंक्शन. अगर अगर क्वार्ट जो है, ठीक है ना, अगर क्वार्ट जो है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा. क्वार्ट मीन्स क्वार्ट नंबर. ठीक है ना. अगर क्वार्ट, इफ क्वार्ट लेस देन 0 है, अगर क्वार्ट लेस देन 0 है और क्वार्ट ग्रेटर देन 4 है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा नम एरर. ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 0 से लेकर 4 तक की क्वार्ट नंबर है. अगर उससे बाहर का हम क्वार्ट नंबर अगर हम डाल दें -1 और 5 लिख देंगे, तो हमें ऑब्वियस सी बात है वो एरर ही रिटर्न करेगा. ठीक है ना. चलो अब हम देखते हैं मैनुअली कि हम क्वार्टाइल फंक्शन तो यूज करना सीखे, बट क्वार्टाइल फंक्शन के बाद हम कैसे पता करेंगे कि हम अब आउटलायर हमने फाउंड कर लिए हैं, ये आउटलायर्स हैं, और हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि यही आउटलायर्स हैं और उसको हैंडल कैसे करेंगे. तो पहला स्टेप्स होता है, क्या होता है कि हम आउटलायर्स को फाउंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. आउटलायर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, करते हैं कैलकुलेशन. तो पहला स्टेप ये है कि हमने क्वार्टाइल वैल्यूज फाउंड कर ली. तो क्वार्टाइल वैल्यूज कैसे फाउंड होती है, Q1 Q2 Q3, हमें 3 चीज़ें पता करनी होती हैं. ठीक है, होती कितनी चीज़ें हैं, Q0 Q1 Q2 Q4, ये हमारे पास इतनी वैल्यू. बट इनमें से हमको ये 3 की जरूरत पड़ती है, सिर्फ Q1 Q2 एंड Q3 की. हमको मिनिमम मैक्सिमम की जरूरत नहीं पड़ती है, बट हम रखते हैं उसको, देखते हैं. ठीक है ना. Q2 हमारा कैसे निकल के आएगा, मीडियन वैल्यू. तो हम तो मान लो हमने Q1 Q2 एंड Q3 हमने पता कर लिया. ठीक है, तो हम एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है ना. हमारे पास ये इतनी इतनी हमारे पास वैल्यूज हैं. तो इसमें से हमारी मीडियन वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी. ठीक है ना. तो हमने 6 ले ली. ठीक है ना, 6 ले ली. तो जब हमने 6 ले ली मीडियन वैल्यू, तो अब हम Q1 फाइंड करेंगे. Q1 कैसे फाइंड होता है, सपोज यहाँ तक है. ठीक है ना. तो Q1 क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द डेटा. लोअर हाफ ऑफ द डेटा ये है, तो ये है लोअर हाफ ऑफ द डेटा. इसके यहाँ मीडियन है, तो इसका लोअर पार्ट क्या हुआ, ये हुआ. तो लोअर पार्ट जब हुआ तो उसका हाफ मीडियन वैल्यू, तो 3. ठीक है ना. देन Q3 मीन्स जो अपर पार्ट है ऑफ दैट मीडियन वैल्यू. तो अपर पार्ट जो मीडियन वैल्यू है उसका मीडियन वैल्यू, तो वो 9. तो ये हमारे Q1 Q2 एंड Q3 ऐसे फाइंड करता है वो क्वार्टाइल फंक्शन ये डाटा सेट में. ठीक है. तो ये हमने जब फाउंड कर लिया, ये हमारे पास आ गए.
ठीक है, ये हमारे पास जब आ गए, अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होता है क्वार्टाइल फंक्शन पता करने का। क्वार्टाइल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्वार्टाइल फंक्शन होता है हम इन क्वार्टाइल रेंज फाइंड करेंगे। इन क्वार्टाइल रेंज मतलब आई क्यू आर, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, सेकेंड स्टेप। सो आई क्यू आर जब हम फाइंड करेंगे, सो Q3 हमारा 9 है, Q1 हमारा 3 है, तो इसको लिखा, ये हो गया 6, तो आई क्यू आर हमारा 6 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, एक एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है Q1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई आई क्यू आर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई आई क्यू आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। सो सपोज Q1 हमारा कितना था वहां पर 6 था, माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 6, Q3 हमारा कितना था 9 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 6, तो इसका कितना आ गया, इसका फॉर्म करो, इसका कितना आएगा, ठीक है ना। तो इसका कितना आएगा, ये दोनों का पता करो। जब ये दोनों का पता चल जाए, ठीक है ना, पता चलने के बाद कंडीशन होती है कि, कंडीशन ये होती है, सपोज रेंज है हमारी, वही रेंज, सेम रेंज, ठीक है ना, सेम रेंज। अगर अगर वैल्यू मान लो, पहली वैल्यू मान लो A1, ठीक है ना, अगर A1 लेस देन, इसको मान लो X, इसको मान लो Y, ठीक है ना, अगर लेस देन X है, ठीक है, और A ग्रेटर देन Y है, ठीक है ना, मतलब इस वाले कैलकुलेशन से छोटी है ये वैल्यू और इस वाले कैलकुलेशन से बड़ी है ये वैल्यू, तो वो वैल्यू आउटलायर में आ जाएगी। समझ में आया, वो वैल्यू आउटलायर में आ जाएगी, समझ आ गया ना, ठीक है ना। तो ये होता है आउटलायर फाउंड करने का तरीका, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर मैंने 10 हटाकर 11 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मीडियन वैल्यू चाहिए थी, ठीक है ना, क्योंकि अगर 10 रहता तो 10 वैल्यू थी सिर्फ, तो इसमें से मीडियन वैल्यू फाइंड करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि 1 2 3 अगर 5 को लेते तो 4 वैल्यू इधर रहती, 5 इधर रहती, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। 11 में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट मान लो अगर 10 ही वैल्यूज होती, तो फिर हम क्या करते, कैसे काउंट करते, तब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, यहाँ तक होती, ठीक है ना, यहाँ तक होती, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे मैं थोड़ा सा रुक गई थी, मैं इसको बाद में बताऊंगी, पहले मैं थोड़ा सा जो जो नॉर्मली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं मीडियन वैल्यू, वो हम बता दें। सो इफ देयर इज 10 वैल्यू, सो वी कैन फाइंड द मीडियन वैल्यू। सो क्या करते हैं इसमें बेसिकली कि ओके, अगर हम 5 चूज कर, अगर हम यहाँ पर 5 चूज कर रहे हैं, 5 चूज करेंगे, तो इधर 4 रह जाएंगे, इधर 5 हो जाएंगी वैल्यू, तो हम क्या करें बेसिकली, ऐसा करते हैं कि जो मीडियन की दो वैल्यू ले लो, अगर दो वैल्यू लेने से इधर फोर हो रहा है, इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो 2 वैल्यूज ले लो। अब वो 2 वैल्यूज लेने के बाद इनको ऐसे लिखो और इनका एवरेज निकाल लो, तो जब एवरेज निकाला तो वो क्या निकला 5.5, तो ये हमारा मीडियन वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन वैल्यू विच इज अ Q2। समझ में आया। ऐसे ही अब हमको Q1 चाहिए, तो Q1 मतलब अब जो हमारी मीडियन वैल्यू जिससे हमने निकाली थी उसका लोवेस्ट पार्ट, लोवेस्ट पार्ट जब हमने लिया, तो अब इसमें भी 1 2 3 4, अब इसमें हम मीडियन वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो इसका भी 2 पार्ट ले लो, जब इसको 2 पार्ट लिया तो 2.3 डिवाइड बाई 2, 5.2, 2.5, ये हमारा क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा 2.5। तो ऐसे हम निकालते हैं जब हमारे पास अनइवन डाटा होता है ना, अनइवन डाटा, तो ऐसे हम मीडियन वैल्यू फाइंड करते हैं। इसीलिए हम मैं थोड़ा सा रुक गई थी कि मैं इसको बाद में बताऊंगी। अब समझ में आया कि आउटलायर्स कैसे फाइंड करते हैं, कि जब हम इससे जो इस वाले कैलकुलेशन से जो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू इस वाले कैलकुलेशन से लेस देन है, अगर इफ नंबर इज लेस देन दिस फ्रॉम दिस वैल्यू, if the number is greater than from this value, so that value will called as a outlier। okay, so ये था बेसिकली कैलकुलेशन। ओके, सो अब आते हैं हम यहाँ पर, कहते थे कि एक हमारे पास चार्ट वे भी होता है, लाइक हमारे पास एक चार्ट होता है, ठीक है ना, इन एक्सेल वी हैव वन चार्ट वी कॉल्ड एज अ बॉक्स प्लॉट। सो अगर हम उस बॉक्स प्लॉट का भी यूज करते हैं ना, तो हमें मोस्ट ऑफ द हमें आउटलायर्स का पता चल जाता है। तो एक बार हम पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे। ओके, सो जैसे ही हमने एक्सेल ओपन किया, तो सबसे पहले एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम मैनुअली ऐसे इंटर करके हम पता करते हैं, ठीक है ना, सब चीज़ सॉल्व करके। अगर अगर हमको पता चल गया आउटलायर, फिर हम एक बार बॉक्स प्लॉट का भी यूज करके हम देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हम क्या फाउंड करेंगे, हम पहले अपने Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 फाउंड करेंगे, ठीक है ना, 5 वैल्यू जो होती हैं वो फाउंड करेंगे। तो उसके लिए हम बेसिकली, और नॉर्मल सी बात है, हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्वार्टाइल लगाएंगे 0, ठीक है ना। तो हमने इक्वल लगाया एंड क्वार्टाइल फंक्शन दिया। क्वार्टाइल फंक्शन देने के बाद हम अरे सेलेक्ट करेंगे, अरे सेलेक्ट किया, अरे सेलेक्ट करने के बाद हम क्वार्ट नंबर देंगे विच इज आ 0। तो हम इसको फाइंड किया, इंटर दबाया, ये हमारे पास आ गया, मिनिमम वैल्यू विच इज व्हाट, विच इज आ Q0। ओके, अब हम पता करेंगे Q1, तो हम लिख लेते हैं Q1 Q2 Q3 एंड Q4, ठीक है ना।
करेंगे हमारा, जब हमारा क्वार्ट नंबर 1 हो, तो जब हमारा क्वार्ट नंबर 1 होगा तो हम क्वार्टाइल लिखेंगे, ठीक है ना। क्वार्टाइल लिखेंगे, क्वार्टाइल लिखने के बाद हमने अरे सिलेक्ट किया, अरे सिलेक्ट किया, जैसे ही अरे सिलेक्ट किया, अरे सिलेक्ट करने के बाद हम क्वार्ट नंबर देंगे विच इज अ 1, विच इज कैलकुलेट द 25th परसेंटाइल ऑफ द लोअर ऑफ द डेटा, तो 33, ठीक है ना। देन हम Q2 पता करेंगे, Q2 विच इज अ मीडियन मीडियन मीडियम वैल्यू, ठीक है ना। 15th परसेंटाइल, इट्स विल कैलकुलेट 15%, सो हम अरे सिलेक्ट करेंगे, अरे सिलेक्ट किया एंड देन हम यहाँ पर 2 देंगे, ठीक है ना। 2 देने के बाद इंटर दबाया, 59, ठीक है ना, ये हमारा मीडियन 15th परसेंटाइल जो होता है अरे का, ठीक है ना। एंड देन अरे सिलेक्ट किया अगेन एंड देन फिर से क्वार्ट नंबर देंगे विच इज अ 3, 75th percentile it's become, okay. And then the last one we will calculate the quartile which is a maximum value, ठीक है ना। तो हम 4 लिखेंगे यहाँ पर एंड तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप जब मैंने एक कैलकुलेशन बताया तब आपने देखा होगा यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है एंड यहाँ पर हमें 3 वैल्यू की नीड होती है, Q2 Q1 Q3 की, ठीक है ना। Q1 से हम लोअर बाउंड निकालते हैं एंड Q3 से हम अपर बाउंड निकालते हैं, और जो वैल्यू लोअर बाउंड से कम होती है और अपर बाउंड से ज्यादा होती है वो हमारी आउटलायर्स होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मैंने लिखा लेस देन एंड ग्रेटर देन, तो ये है बेसिकली। तो हम चलो हम यहाँ पर अब हमारे पास मेरे पास जो फॉर्मूला होता है, तो सपोज जैसे हमारे पास हम लिख लेते हैं यहाँ पर नॉर्मली कि लोअर बाउंड इज इक्वल टू व्हाट्स IQR, lower bounds and then Q2 minus 1.5 multiply IQR, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है लोअर बाउंड कैलकुलेट करने का। ऐसे ही अपर बाउंड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, अपर बाउंड इज इक्वल टू Q, सॉरी यहाँ पर Q1 होता है ना, Q1 होता है, ओके। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके ओके, सो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, बट नो वरीज, हम फिर से लिख देते हैं एक बार, Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई IQR, इंटर क्वार्टाइल, IQR मींस इंटर क्वार्टाइल रेंज। IQR कैसे फाइंड करते हैं, IQR फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, Q3 जब हम Q3 से Q1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा IQR पता चल जाता है, ठीक है ना। तो चलो हमें ये पता चल गया। अब यहाँ पर हम Q1 Q2 Q3 पता है हमको, ठीक है ना। हमारे पास IQR भी है, IQR हम फाइंड कर लेते हैं, सो IQR हम फाइंड कर लेंगे। IQR जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आएंगे इक्वल Q3 माइनस Q1 एंड इंटर, Q3 माइनस Q1 किया तो हमारा IQR पता चल गया विच इज 58.5। तो अब हम लोअर बाउंड फाइंड करेंगे, सो लोअर बाउंड फाइंड करने का एक तरीका होता है लोअर बाउंड, तो यहाँ पर आएंगे इक्वल लगाया Q1, व्हाट इज द Q1 इज 33, तो हमने 33 लिया माइनस 1.5 मल्टीप्लाई IQR इज 58, सो ये हमारा लोअर बाउंड आ गया, लोअर बाउंड इज दिस, सो हमने यहाँ पर लिख देते हैं लोअर बाउंड, ठीक है ना। अब हम अपर बाउंड पता करेंगे, तो अपर बाउंड इज लाइक इक्वल Q3 इज दिस प्लस 1.5 मल्टीप्लाई IQR इज 58.5 इंटर, ये हमारा अपर बाउंड रहेगा। अब इस डेटा में जितनी भी वैल्यू अपर बाउंड से ज्यादा है, ठीक है ना, अपर बाउंड से ज्यादा है, वो हमारी सारी का सारी वो हमारी क्या हो जाएंगी, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को छोड़ के, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को छोड़ के अगर कोई भी वैल्यू, ओके, कोई भी वैल्यू जो अपर बाउंड से ज्यादा है वो मैक्सिमम वैल्यू भी है, ठीक है ना, तो हम मैक्सिमम वैल्यू को लीव कर देंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू को एज अ आउटलायर नहीं लेंगे इसमें, ठीक है ना। ये हमारा बॉक्स प्लॉट में दिखता है, ठीक है ना, बॉक्स प्लॉट में दिखता है, ठीक है। बट एज अ रूल विच इज अ ग्रेटर देन अपर बाउंड उसको हम ले लेंगे, ठीक है ना, उसको हम एज अ आउटलायर कर लेंगे, ठीक है। बट बॉक्स प्लॉट में क्या होता है, बेसिकली बॉक्स प्लॉट में ये होता है कि अगर सपोज यहाँ पर 231 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू अपर बाउंड से ज्यादा है तो हम इसको एज आउटलायर लेंगे नॉर्मली। बट वहीं पर बॉक्स प्लॉट में क्या होगा, जो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी एज अपर बाउंड नहीं आएगी, एज अपर बाउंड नहीं दिखेगा, बट वो एक हमारा एज आउटलायर नहीं दिखेगा, बट वो एक्चुअली हमारा एक आउटलायर है क्योंकि वो अपर बाउंड से ज्यादा है। तो हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज होंगी जो लेस देन 50 माइनस 54 होगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, लोअर बाउंड हो जाएंगी, मतलब वो हमारी क्या हो जाएंगी, आउटलायर्स हो जाएंगी, और जो भी अपर बाउंड से ज्यादा होंगी वो हमारी क्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं कि इफ दिस सो दिस, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे बेसिकली इफ यहाँ पर, ठीक है, चलो इफ
हमको क्योंकि चाहिए या तो ये या तो ये, इन दोनों में एक सही हो अगर तो कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। सो इफ और फंक्शन देंगे, ठीक है ना। अब हम देंगे लॉजिकल वन। हमारा पहला लॉजिक क्या होना चाहिए, पहला लॉजिक ये होना चाहिए कि अगर ये वैल्यू लेस देन लोअर बाउंड है, अगर ये वैल्यू लेस देन लोअर बाउंड है, ठीक है ना, कॉमा, अगर लेस देन लोअर बाउंड है, कॉमा, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन अपर बाउंड है, ठीक है ना, तो क्या कर दो कि ये हमारा आउटलायर है, ठीक है ना। हम राइट कर देते हैं, अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक ट्रू हो रहा है ना, तो कह दो कि ये हमारा क्या है, आउटलायर है, ठीक है ना, आउटलायर, कॉमा, रिटर्न कर दो नॉर्मल वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो इसने रिटर्न किया 30, मतलब 33 आउटलायर नहीं है हमारा। अब हम इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, हम ऐसा करते हैं यहाँ पर डॉलर साइन भी एब्सोल्यूट कर देते हैं इसको, एक मिनट, फंक्शन F4 का यूज करते हैं तो ये एब्सोल्यूट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो हमको इसमें एब्सोल्यूट करना पड़ता है, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट नहीं करेंगे तो फिर वो फिक्स नहीं होती है वो वैल्यू, ठीक है ना। तो हम देखो यहाँ पर 33 हमारा वैसे का वैसे रिटर्न हो गया, हमको 54 भी रिटर्न हो गया, 33 120 भी रिटर्न हो गया, 64 भी रिटर्न हो गया, सब कुछ रिटर्न हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे आउटलायर्स नहीं है, जहाँ पर आउटलायर लिखा हुआ वो हमारे आउटलायर्स है, आउटलायर आउटलायर आउटलायर, ठीक है। अब तुमको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास 3 आउटलायर्स है। अब हम यही चीज बॉक्स प्लॉट में देखते हैं, ठीक है ना। तो बॉक्स प्लॉट में क्या होता है, बेसिकली रेंज सेलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद डेटा सॉरी इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने रिकमेंडेड चार्ट में क्लिक करेंगे, ऑल चार्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स एंड विस्कर करके एक होता है, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे पास चार्ट बन के आ गया। ये चार्ट में तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहे होंगे, ये और ये। अब हम चाहते हैं कि हमें नंबर्स भी दिखे, सब कुछ दिखे, तो प्लस पे आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम डेटा लेबल्स पे क्लिक कर देंगे। डेटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो सारी वैल्यूज हमको दिखने लगेंगी। अब देखो ये जो मिडिल वाली लिखी हुई है ना 68.85, ये हमारा मीन होता है। इसने एवरेज कैलकुलेट कर लिया सबका, ये हमारा एवरेज हो गया, ठीक है। ये जो हो गया ये हमारा मीडियन वैल्यू हो गई 59, जो कि हमारा Q2 है, वो आ गया, ठीक है ना। ये हमारा ये मतलब क्या होता है, अप्रॉक्स वैल्यू देता है, अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं देता, जो भी होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये और ये, ठीक है ना, ये हमारा जो यहाँ पर 99 है, ये हमारा Q3 है, ठीक है ना, और ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q3 है। अब ये हमारा Q1 और Q3 तो है, ठीक है, ओके, समझ आ गया हमको। इसने IQR कैलकुलेट किया, IQR कैलकुलेट करने के बाद इसने लोअर बाउंड और अपर बाउंड कैलकुलेट किए, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 231 है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 231 है, इसने कैलकुलेट की, ओके 231 है। फिर उसने क्या किया, उसने एक अपर बाउंड कैलकुलेट किया। जैसे उसने अपर बाउंड कैलकुलेट किया, उसने देखा कि यार अगर अपर बाउंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोनों हमारे आउटलायर्स निकल जा रहे हैं, तो अब हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने जो बोला जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको आउटलायर बना दिया, और उसके नीचे एक और जो आउटलायर था जो उससे लेस देन है, ठीक, उसको मैक्सिमम वैल्यू बना दिया, ठीक है। ये थोड़ा बॉक्स प्लॉट का होता है, ठीक है ना। हमारे इसमें 3 आउटलायर्स हैं, बट इसमें हमें 2 आउटलायर्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। जबकि 200 भी हमारा आउटलायर्स है, बट उसको एज मैक्सिमम वैल्यू वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। उसको हम ले सकते हैं एज आउटलायर, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। देन माइनस 100 जो कि हमारा आउटलायर है उसने लिखा हुआ है, ठीक है, -100 एंड अगर -100 के बाद देखा जाए तो लोअर वैल्यू क्या होगी, -100 के बाद लोअर वैल्यू होगी 11, तो उसने 11 को लोअर वैल्यू ले लिया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कितने आउटलायर्स हैं। मोस्ट ऑफ द ये आउटलायर्स बता देता है, ठीक है। एक ही जो होता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर -100 से कम होते ना कोई वैल्यू, तो उसको यहाँ पर बना देता, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे हम बॉक्स प्लॉट का भी यूज करके हम आउटलायर्स का पता करते हैं। अब जैसे मान लो हमको ये पता चल गया हो कि हमारे पास आउटलायर्स है यहाँ पर, तो अब हम इसको फिल कैसे करते हैं। तो फिल करने का एक तरीका होता है यहाँ पे, सबसे पहले तो अपने जो हमारा बिजनेस ऑनर है और जो जिसके थ्रू हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारा सीनियर है जिसको हमें रिपोर्ट देनी है, उससे जाके कंफर्म करो एक बार कि वी हैव दीज आउटलायर्स इन दिस डेटा सेट इन दिस कॉलम, तो व्हाट वी हैव टू डू। अगर वो बोलता है कीप दैट आउटलायर्स, तो क्या करोगे, हम आउटलायर्स के साथ एनालिसिस करेंगे। सपोज आउटलायर्स भी हैं और मिसिंग वैल्यूज भी हैं, तब तुम कैसे फिल करोगे। तो हमने क्या बताया था, अगर आउटलायर्स भी है तो हम
क्या यूज करते हैं, मीडियन यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर आउटलायर्स हैं, अगर आउटलायर्स नहीं होते हैं तो हम मीन यूज करते हैं, जो कि हमारे पास आउटलायर्स है तो हम मीडियन यूज करेंगे एज अ मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए। बट अगर वो होता है नो नो दिस आउटलायर्स इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस डेटा सेट, रिमूव दैट, तो क्या करोगे, अब उस आउटलायर्स को तुम रिमूव कर दोगे। और अब आउटलायर्स जो कि रिमूव हो चुके हैं डेटा सेट से, अब क्या करोगे, सारी मिसिंग वैल्यूज को मीन से फिल कर दो, ठीक है ना। तो ये हमारा रूल होता है आउटलायर्स के साथ हैंडल करने का, मिसिंग वैल्यूज के साथ हैंडल करने का। सो ओवरऑल मैंने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना बता दिया है, यही एक मेन पार्ट होता है। फर्स्ट होता है डाटा टाइप को चेक करना, डाटा क्लीनिंग में डाटा टाइप चेक हो गया, ठीक है। ट्रिम करना होता है हमें डेटा सेट्स को, अगर कोई स्पेस वगैरह नहीं है, ठीक है ना, वो सब भी हम नेक्स्ट स्टेप्स में देखेंगे। वो ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, ट्रिम फंक्शन का यूज करना होता है। मेन होता है आउटलायर, आउटलायर को समझना, आउटलायर्स को पता करना, वेयर इज द आउटलायर्स, हाउ मेनी आउटलायर्स एंड वी हैव टू रिमूव और नॉट इफ दैट आउटलायर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आउटलायर्स का चैप्टर फिनिश। अब हम इस डेटा सेट को अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन के साथ, आप प्रॉपरली प्रिपेयर करना एंड प्रैक्टिस करना, ओके। सो दैट्स इट। अभी बहुत सारे पार्ट बाकी हैं, अभी लाइन चार्ट, पिवट टेबल एंड बहुत बहुत सारे टॉपिक्स अभी पेंडिंग है, तो हम वो पढ़ाएंगे। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या होता है, ओके। सो बाय बाय एंड प्रैक्टिस विद ऑल द थिंग्स।